इंडिया है ये बहुत ज्यादा पॉलिटिकली ना सबके साथ एक जैसा रह रहा होता है, बहुत ही डिप्लोमेटिक है। हाँ, बहुत डिप्लोमेटिक है, लाइक वो किसी के साथ भी अपने रिलेशंस खराब नहीं करता। हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ ईशा तारिक, मेरे साथ है मैं हूँ फैसल और जवेरिया सिद्दीकी। और एक वीडियो आई है इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर की, और काफी हमने उनकी वीडियोस देखी हैं और बहुत फैंस हैं इंडिया के, और उन्होंने जिस तरह से इंडिया को लेके आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने रिलेशंस अपने बेहतर किए हैं फॉरेन कंट्रीज के साथ, वो बहुत अप्रिशिएटिंग है। तो हमारे पास मैं यहाँ पे ना एक बात करना चाहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर को अगर डिफाइन किया जाए ना कि वो क्या है, तो अगर कोई दुनिया के साथ कनेक्ट करने वाला इंसान इंडिया कंट्री को है ना, तो वो जयशंकर को जिस तरह से उन्होंने फॉरेन रिलेशंस बेहतर किए, लेकिन साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी जाएगा सुने को, वो इस वजह से क्योंकि उन्होंने उनको फ्री हैंड दिया। नहीं, अगर हम मोदी को देखें तो वो इंटरनली सब कुछ संभालते हैं, और जयशंकर जी जो है वो सारा कुछ एक्सटर्नली संभालते हैं, और जिनकी टीम जो है ना वो बहुत ऑन पॉइंट है, बहुत ऑन पॉइंट है। क्योंकि इतना नॉलेज होना और इतना डिलीवरी स्पीच के अंदर फॉरेन मिनिस्टर को जजता है कि वो अगर डिलीवर करे। अब हम इधर बैठे हुए कहेंगे ना कि फलाने का जो फॉरेन मिनिस्टर है यूएसए का, यूके का, जापान का, इसका उसका, तो हर कंट्री पूरा एक बंदा जो है ना पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है पूरी दुनिया के सामने। अब यूएन की बात करें, वहां पे स्पीच की है, हिला के रख दिया पूरी दुनिया को। अब एक इंटरव्यू आ रहा है जिसका हम एक छोटा सा क्लिप देखेंगे, और उस क्लिप में उन्होंने क्या क्या कहा है अभी तो हम नहीं आपको बता सकते क्योंकि सुनेंगे और फिर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो का टाइटल है यूएस वेस्ट आर्म डिक्टेटरशिप लाइक पाक। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम अपनी ओपिनियन आपके साथ शेयर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। We actually had a 40-year period where the West was primarily arming Pakistan. सारी बंदूकें हमारी तरफ करके We actually had a 40-year period where the West was primarily arming Pakistan. We turned to the Soviet Union as a military partner. We've never really had anything other than a positive experience with the Soviet Union and then with Russia. I think something that's very much on the minds of America is India's relationship with Russia. Now, we're all, I think, familiar with the history, the legacy, the background to the bilateral relationship, the long-standing strong ties. You yourself described the tremendous growth and the flourishing in India's partnership with the United States, as well as with others in the West. And there's just no question that there are tensions between those two trends. So can you give us just a sense of how India squares that circle, reconciles those pressures? I'd make four or five points about Russia so that people understand, what is the importance of that relationship. I mean, first of all, if you look at the map of Eurasia, there's a very simple, obvious strategic proposition there, which is you have, if you look at the big countries of the Eurasian landmass, it makes sense for those countries who don't have direct borders with each other to develop strategic relationships, which is how they serve each other's interests. And for us, our own history after independence, we've never really had anything other than a positive experience with the Soviet Union and then with Russia. Secondly, during the period of the Cold War, when the US and Western countries generally tended to prefer, at least in our region, dictatorships like Pakistan, we actually had a 40-year period where the West was primarily arming Pakistan, and we turned to the Soviet Union as a military partner. So we have, a long defense and security relationship, other than the strategic and the geopolitical equations of which I spoke about. The third point I would say is economic. Today,
if you look at India, the nature of the Indian economy, we are large natural resources consumers. And for us, the natural resource exporters of the world hold a very special significance, And so it could be a Russia, it could be an Australia, it could be an Indonesia, it could be the countries of the Gulf for energy requirements. And as Russia today turns more towards Asia because of its current tensions with the West, for us, there are certain economic complementarities here which come to fore. So there is today, I would say, a kind of a geopolitical case for the relationship, a military security case, economic one as well. Now, how do you reconcile this with a growing relationship with the US? I would even say growing relationship with Europe, because that relationship has also grown. As I said, look, it's a multipolar world. Different poles deal with each other. We're no longer in a world where the relationships are exclusive. Every country wants to get the best out of the international order in the most effective way it can. So it requires, a certain amount of care and, I would say, perhaps dexterity to manage it. But it has to be done because, it's not feasible to expect that big countries constrain their options and don't deal with other countries, not because of their interest, but because somebody else has a problem with those countries. All right, that's a very provocative answer. हाँ जी, तो पहली बात तो ये कि इसमें बड़ा सख्त सवाल किया गया था, क्योंकि वो जज करना चाह रहे थे कि इंडिया जो है ना वो किस साइड पे खड़ा है। क्योंकि ये वाला सवाल बहुत ज्यादा किया जाता है कि जो इंडिया है ये बहुत ज्यादा पॉलिटिकली ना सबके साथ एक जैसा रह रहा होता है, बहुत ही डिप्लोमेटिक है, बहुत डिप्लोमेटिक है, लाइक वो किसी के साथ भी अपने रिलेशंस खराब नहीं करता। और मैंने ये बहुत बार पढ़ा है कि कैसे हो सकता है कि एक कंट्री सबके साथ रिलेशंस अच्छे कर ले, क्योंकि वो उन्होंने रिप्लाई किया, हो सकता है ये। अच्छा, लेकिन जैसे बात हो रही थी ना कि अरसे से कोल्ड वॉर चल रही है, रशिया यूएस, आपको एक पार्टी चूज करनी ही पड़ेगी, आप अलाय आपको बनना ही पड़ेगा, वरना वो आपको वैसे ही बैन कर देंगे। लेकिन इंडिया ने जिस तरह से न्यूट्रल रहा है ना वो पूरे टाइम में, मैं सबको बता रही होती थी कि यार इंडिया की तरह हम भी न्यूट्रल रहते, हम भी इस तरह न्यूट्रल रहते, मतलब अपने पर्सनल बीफ नहीं लाते। अगर मैं थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ जाऊं तो सोवियत यूनियन जिसको बोलते हैं ना, ये रशिया का ही पार्ट था, जिसको रशिया बोलते हैं। तो वो टूट के कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, रशिया अलहदा हो गया। तो इनकी अफगानिस्तान के साथ जंग हुई थी, तो हमने अफगानिस्तान का साथ दिया था, रशिया हमारे अगेंस्ट होकर इंडिया की तरफ चला गया। और जब क्या हुआ, यूएसए से हमने जो है ना वो असला लेना शुरू कर दिया, तो चाइना नाराज, चाइना से काम करते यूएसए नाराज, रशिया जाते तो यूएसए नाराज, यूएसए जाते तो रशिया नाराज। ये हमारी सिचुएशन थी। और इंडिया में भी जाता है, रशिया भी जाता है, सबके साथ। लेकिन फैसल, जब भी कोई इम्पोर्टेंट वो हो रहा होता है ना, किसी की जंग हो रही है या आपस में कुछ ऐसे तबादला, तो इंडिया हेल्प के लिए फिर कहता है मैं ग्रुप नहीं हूँ किसी का। हाँ, लेकिन वो हेल्प के लिए पहुंचता है, हेल्प के लिए पहुंचता है। किसी के साथ बहुत ज्यादा किसी को जरूरत है ना, एड की जरूरत है, तो वो कहता है कि मैं अभी जब हम पैलेस्टीन की बात करते हैं तब भी इंडिया कैसे आगे हुआ था और किस तरह से उन्होंने कहा था कि ये अगर यूक्रेन में मसला है एड भेज, तो वो पहुंच जाते हैं। रशिया में मसला है किसी के साथ खड़ा नहीं होता, लेकिन हेल्प में खड़ा होता है। और एक और चीज करता है, ये कहता है कि हम न्यूट्रल बीच में आपकी सुलह करा देते हैं। अगर हमें आपने बीच में रखना है ना, तो हम लाइक मिडल मैन की तरह आपको जोड़ते हैं। और वो फिर दोनों कंट्रीज इंडिया के साथ मिल जाती हैं, दोनों नहीं नाराज होते हैं, वो दोनों उसकी मतलब अब एक और बात, अब अगर खुल के इंडिया किसी से लड़ता है ना, तो वो चाइना है, ठीक है, क्योंकि बॉर्डर मैच करते हैं ना, और पाकिस्तान है। वो भी ना कोई कोल्ड वॉर नहीं कर रहे थे, वो इकोनॉमी की जंग है उनकी कि हमने ऊपर कैसे जाना है। ये बॉर्डर की जंग भी है, लड़ते हैं आपस में। उधर जो है ना वो साइड पे जो है ना वो भी है, हमारे साथ भी इशू। दो ऐसी कंट्री हैं जिसके साथ इंडिया खुल के सामने आता है, लेकिन चाइना के साथ कभी बिजनेस नहीं रोका इंडिया, कभी ट्रेड नहीं रोकी। आज भी इंडिया और चाइना का इतना बिजनेस एक दूसरे की कंट्री में आता जाता है। फिर कभी कभी जैसे टिकटॉक बैन कर दी, एक दो चीजें और बैन कर दी,
कि हमारा डाटा जो है ना वो लीक ना हो, क्योंकि अपोजिट कंट्रियां हैं, कंपटीशन है, तो किसी का भी कोई मिसयूज लेकिन वो भी सिर्फ थोड़े टाइम के लिए लोगों को दिखाने के लिए और मतलब कंट्रीज को बताने के लिए, लेकिन वो नहीं होता नहीं है वो। और हमने ट्रेड बंद कर दी और हाँ। किसका पांव कटा? खुद का। लेकिन हमारा टिकटॉक तो सिंगापुर का है ना कि चाइना का है टिकटॉक, तो चाइना, इंडिया ने हाँ। बैन कर दिया हुआ है कि हमारा जो ऑफिशियल डाटा है कहीं वहां तक ना चाइना पहुंच जाए, अच्छा। क्योंकि फिर इनकी एजेंसीज होती है ना, एक दूसरे की तरफ आ रहे होते जा रहे होते हैं, तो उस वजह से। लेकिन जो बड़ी ट्रेड है, जैसे कि बहुत सारी चीजें और भी हैं, तो उसमें इंडिया और चाइना जो है अभी भी बिजनेस करते हैं। चाइना इंडियन आते हैं, इंडियन वाले चाइना जाते हैं, कभी किसी की ट्रैवलिंग नहीं रोकी, कुछ भी नहीं किया, लो वीजा लगवाते हैं, सब वीजा चलता करते हैं। हाँ। हाँ, तो ये है स्ट्रेटेजी। और जयशंकर और ने जब- कैसा जवाब दिया है, जब गोरे ने पूछा ना, गोरा जयशंकर को खोलना चाह रहा था बेसिकली, जब उसने कि क्वेश्चन वो किया बताओ किसके साथ हो, किसकी किसके पार्टी साथ में हो? हो, किसके अलाए हो। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इसके साथ हूं या नहीं हूं, उन्होंने कहा है कि मैं पहले बताता हूं दुनिया में हो क्या रहा है। हाँ। और तो किस पहले तरह से उन्होंने relations कहानी को बनाए उधर जा रहे लेके हैं। चले हाँ। गए हैं, इधर उधर उन्होंने लेते कहा गए, कि करते करते हाँ। उन्होंने कहा कि हम तो इकोनॉमी भी कर रहे हैं, सबके साथ गोल्फ के साथ भी कर रहे हैं, इसके साथ भी कर रहे हैं, रशिया के साथ भी, कर रहे हैं, यूएस के साथ US के भी, साथ कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, हर कंट्री के साथ, जापान चल सबके रहे साथ चल रहा है। हैं। हाँ। तो जवाब को मजा आया फिर। हाँ, जवाब का बहुत। और जिस तरह से उन्होंने बात को घुमाया घुमाया। और बीच में पाकिस्तान का एक फैक्टर डाला हाँ। कि यूएस से अगर थोड़ी सी हमारी कम है बीफ है बॉन्डिंग, तो वो इस तो वजह इस से वजह से हाँ। इनको 40 साल से इनको असला देता हाँ, है, असला देता रहा है। तो यूएस तो चाहता ही है कि सब लड़े। हाँ, जब US का लड़ेंगे है। तो फिर तो चुतराहट आएगी। मतलब वो आगे रहे और बाकी सब लड़ते और रहे, वो ये अपना तो असला सबसे बेचे। उनकी स्ट्रेटेजी है। और हाँ। यूएस ये भी चाहता है इंडिया और पाकिस्तान भी लड़े, हाँ, वो ये वो ये चाहता है। चाहता है, लेकिन वो ये होगा नहीं, क्योंकि जब ये हुआ ना तो फिर वर्ल्ड वॉर 3 होनी है, फिर हाँ। वो कोई फिर फिर बचेगी कोल्ड कुछ। वॉर नहीं होगी। फिर कोल्ड वॉर लेकिन नहीं आपने होगी। ये देखा कि ये जयशंकर वो को वक्त होना ही नहीं चाहिए, ये वक्त आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जाने उधर भी वही है, इंसानियत इधर भी है उधर भी है, तो इससे बचना ही लेकिन चाहिए। जयशंकर ने इतना बोल्ड जवाब दिया है, वो उसने रखा भी बीच में कि यूएस रशिया दोनों के साथ ही एक सही अपना है, point भी दे लेकिन दिया बीफ भी और बताया कि बीफ नहीं- अगर हाँ, है थोड़ा तो सा इस तो किस वजह से वजह से है। हाँ। वो भी उसने बता हाँ, दिया, तो यानी बड़ा कि- आंसर बनता है। अगर फॉरेन मिनिस्टर कोई ऐसा है ना, तो वो ऐसे इंसान को वो नहीं पैनिक हुआ कि मैं कहूँ मैं इस साइड पे हूँ, उन्होंने कहा मैं कहानी सुनाता हूँ कि दुनिया में चल क्या रहा है। तो सारी डिटेल में करते करते हाँ, जवाब कि दे किस भी दिया बेस पे relations और नहीं बन भी रहे दिया, हैं। और सारी अवाम भी वो उसने एंड पे कहा भी है कि आपने तो बड़ा फिर हंसे भी है हाँ। सारे कि आपने तो भाई बहुत आपने भाई क्या आंसर हिला के दिया रख है। दिया। हाँ। लास्ट टाइम भी जो हमने स्पीच सुनी थी उसमें भी ऐसा ही कोई क्वेश्चन था और उन्होंने लास्ट में प्रेज लेकिन किया था अगर कि किस यही तरह सेम से क्वेश्चन आंसर हमारे दिया। से होता ना तो हमने कहना था आ, अच्छा आ, हाँ, US हाँ, इस साइड पे है तो मतलब कि साइड पे नहीं भी है, दूसरे को नाराज लाजमी और वो करना है। एक थोड़े से वर्ड्स उठा के फिर पूरी दुनिया में अच्छा, फैला मुझे दिए एक और जाते बात भी हैं। बहुत अच्छी लगी कि वो इतने पॉलिटिकली करेक्ट है कि उन्होंने यूएस नहीं बोला, उन्होंने वेस्ट बोला। बेस्ट उन्होंने बोला, किसी एक कि कंट्री को टारगेट नहीं वेस्ट किया, में तो आ जाता है पूरा ही पूरा ही वेस्ट, वेस्ट हो जाता पूरा है। वेस्ट आ जाता है। कोई तो- भी समझ लो। हाँ, कि कुछ भी आप उस साइड का कोई भी समझ लो। डॉक्टर जयशंकर जैसा फॉरेन मिनिस्टर, इस जैसी सोच, इस जैसी डिलीवरी वाला फॉरेन लेकिन मिनिस्टर हमें ऐसी चाहिए, चीजें- फिर हम दुनिया के साथ हम भी कनेक्ट कर ऑन पॉइंट याद करना और उन लफ्जों का चुनाव सही करना, ये इतना इंपॉर्टेंट है ना कि आप एक लफ्ज भी गलत बोल के आप किसी को नाराज कर सकते हो, ये उनको पता है। खैर, वीडियो बहुत मजे की थी। आप बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और जयशंकर की इस स्टेटमेंट के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है। लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें इनसाइड रिएक्शन। टेक केयर।